I'll wait for 1 more minute to let everybody join and then we'll start. ठीक है? Those who have not written their name, class and section in the chat box, please write it down. Otherwise, I will not mark your attendance. Sandesh, can you hear me? I think your mic is on, but I cannot hear you. Okay, all right. I'll start with the, yeah, it's okay, Sandesh, you can put off your mic. Um, I'll start with the class here. Those who have not written their name, class and section, please write it down. And I'll first start with by telling you what all has been deleted from the syllabus, and then we'll start with the chapter. Okay. So in case you have any doubts, I will pause in between. Then you can ask those doubts to me, or we will discuss your doubts in the last 10 minutes of the class. Okay. And do not hesitate in telling me to repeat it. I will repeat it for you. So let's start. Give me 1 second. And those who are joining right now, I request everybody to please join before time. कुछ problem है तो you can tell me and I will wait for you accordingly. Now this is the chapter. The name of this chapter is gravitation. Uh, in your syllabus this particular year, till page number 100 and 1 second. Okay, till page number 137. 137 और 138 में आप ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहे हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के ऊपर, यहाँ तक आपके सिलेबस में, ठीक है? थ्रस्ट एंड प्रेशर के बाद जितना भी चैप्टर है, it has been deleted from the syllabus. It is not going to be asked in the final examination or in your examination. So the later part after thrust and pressure has been deleted. ठीक है? उससे पहले वाला आपको सारा पूछा जाएगा. So we'll be discussing till before thrust and pressure only. ठीक है? So let's start the class. Is my screen visible to you clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. No? Who's saying no? If you see multiple IDs with the name Science KV or FDR, click on the pin the ID from which I'm speaking. उस ID को pin कर लीजिए, वो आपकी screen पे आ जाएगा. Now look here. So gravitation, gravity word हमने बहुत सुना हुआ है. We have already heard about this, and we also know about this story wherein Newton was sitting under a tree, and क्या हुआ कि जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो न्यूटन के ऊपर एक सेब आके गिरा. And then at that point he thought about the fact कि ये जो सेब है ये ऊपर से नीचे ऐसे आके गिरा, और नीचे आने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे why did it stop? वो रुका क्यों? क्यों नहीं वो वापस बाउंस होके ऊपर चला गया, या फिर वो नीचे ही क्यों आया? तो ये क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए न्यूटन ने एक सिंपल दिस कॉन्सेप्ट, एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ग्रेविटी. एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉज हैं ग्रेविटी के, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है? सो पहले आगे बढ़ने की बजाय कि ये ग्रेविटी तक न्यूटन कैसे पहुंचे या क्या उसका ग्राउंड था, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इट. ठीक है? ग्रेविटेशन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है और किस तरीके से लोग पहले मानते थे कि ग्रेविटी होती है. ठीक है? सो earlier there were many religious और superstitions, मतलब बहुत सारे religious धारणाएं थी और कुछ कुछ superstitions थे जो कि related थे हमारे solar system को लेके. सोलर सिस्टम को माना जाता था कि जो सोलर सिस्टम है, ये जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, फॉर नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स, बट दीज ऑल ऑफ दीज प्लैनेट्स, ये सारे के सारे एक ही पाथ पे कैसे मूव करते हैं? क्या सन सेंटर में है, क्या अर्थ सेंटर में है, ये सारे पहले बहुत ज्यादा लोगों को
सुपरस्टिशंस थे इसके बारे में, दे हैड दीज मिथ्स। एक मिथ था जिस मिथ के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ है, these people from ancient history, as in historical backgrounds, Greek historians and everyone, they used to believe कि जो अर्थ है वो सेंटर है। ठीक है, ऐसा वो मानते थे that earth is the center and around which the other planets and sun are revolving। ठीक है, क्योंकि आप भी अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा, because as we see the sun keeps on changing its position, we see that the moon keeps on changing its position। So earlier people used to think कि अर्थ के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है, बिकॉज उनके उनका ये मानना था कि हम तो मूव करते नहीं है, तो ऑब्वियसली यही सारे जो प्लैनेट्स हैं, यही सारे जो celestial bodies हैं, they keep on moving around it। ठीक है, but there came a scientist, his name was, in the 1500s there's a scientist, his name is Nicholas Copernicus। ठीक है, so कॉपरनिकस ने कहा, उन्होंने कुछ स्टडीज करी, उस स्टडीज के अकॉर्डिंग ही फाउंड आउट दैट इट इज नॉट द अर्थ विच इज लाइंग इन द सेंटर, बट इट इज द, he gave many theories regarding this। so he said that the sun lies in the center। so इस थ्योरी से हम इस थ्योरी की तरफ चले गए। ये सब कुछ आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। So we went from this theory wherein the earth was at the center, however now the sun is considered to be the center। ठीक है, but this theory was incomplete because कुछ ऐसे concrete proofs नहीं थे, तो ये थ्योरी इनकम्प्लीट हो गई। बट इसी थ्योरी को लेकर कई सारे और साइंटिस्ट थे, कई सारे रिसर्चर्स थे, जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर स्टडी करके आगे बढ़े हुए। ठीक है, दे ट्राई टू फाइंड आउट। लेटर ऑन देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज केपलर। ठीक है, दिस साइंटिस्ट, दिस पर्टिकुलर पर्सन, इन्होंने 3 लॉज को फॉर्मुलेट किया, जिस लॉ के हिसाब से हमें पता चल गया कि क्या होता है, क्यों होता है, ये सन के आसपास ऐसे क्यों घूमेगा। लेकिन इनकी थ्योरी में क्या प्रॉब्लम थी? सो दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड स्टोरी। ओके, सो यहाँ पर ये कहीं आप ऐसा बुक में आपके नहीं लिखा हुआ है, इट इज जस्ट अ स्टोरी रिगार्डिंग हिज लाइफ कि केपलर यूज टू वर्क विद वन पर्सन, हिज नेम वाज टाइको ब्राहा। ठीक है, और ये सब कुछ लर्न नहीं करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो टाइको ब्राहा, in this case what happened was, Tycho Brahe was basically a map, he used to make maps। ठीक है, so वो मैप्स बनाते थे, और उन्होंने बहुत सारे सन के पोजीशंस और इन सब चीज के पोजीशंस को देख के he understood कि, okay, so he understood what is the position of each and every star, what is the position of each and every planet. Based on that study, when Tycho Brahe, he died, when Tycho died, after that Kepler ने क्या किया, उसका जो वर्क था वो चुरा लिया। so Kepler ने ये सारा जितना भी उन्होंने मैप्स बनाए थे, everything he stole that because they used to work together। when he stole that, he gave these 3 laws based on those maps। ठीक है, वो मैप के बेसिस पे उन्होंने ये 3 लॉज दिए। पर जब दुनिया ने उनसे पूछा कि ये लॉज क्या है, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, सो ही कुड नॉट आंसर बिकॉज दिस वर्क डिड नॉट बिलोंग टू हिम एग्जैक्टली, ही स्टोल इट फ्रॉम समवन एंड देन ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी। ठीक है, बट basis all these theories, there's another scientist which you are all familiar with, his name is Newton। so Newton gave the theory of gravitation, and also ये theory जो है वो मिलती जुलती है with गैलीलियो का भी कुछ ग्राउंड वर्क था। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, we only talk about Newton because he gave a concrete answer about it। so now जब केपलर ने ये थ्योरी दी, तो केपलर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, वो क्यों नहीं स्टॉप कर जाते एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, और ये जो थ्री लॉज हैं, ये किस तरीके से प्लैनेट उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं, इन सब के आंसर्स किसने दिए, इन सब के आंसर्स दिए न्यूटन। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू बिलीव कि जो कुछ एंजल्स हैं, देयर आर सर्टेन एंजल्स, ये मिथ्स होते हैं, जैसे हमें भी कुछ हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि ऐसा था वैसा था। तो इस टाइम पे भी कुछ ऐसे मिथ्स थे कि देर आर सर्टेन एंजल्स जिन्होंने अर्थ को होल्ड करके रखा हुआ है, एंड दे कीप मूविंग विद द अर्थ इन देयर हैंड्स सो दैट अराउंड द सन। तो यहाँ पर ये उनका मिथ था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था।
After many years, people found out that there are no angels which keep on holding the sun. It is the force of gravity which holds the sun, the earth. ये मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? ग्रेविटी हेल्प करती है. तो ग्रेविटी क्या होती है ये हम समझते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, ग्रेविटी इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में है उन सबके बीच में. ठीक है, और बेसिस दिस ही गेव अ लॉ. This law is known as the universal law of gravitation. Now this is important. ये आपको पढ़ना है, ये आपको समझना है. वो हिस्ट्री that is not so important. It is just a background story. ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया, और जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है. उस बुक का नाम है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका. ठीक है, सो प्रिंसिपिया Mathematica. So this is his book in which he has written about this thing, all the laws of gravity and everything, how it works. He has written about that in the book. Now, what is this law of gravitation? Now, this law of gravitation, you have to learn this पहले, लेकिन लर्न करने से पहले आप इसको समझो तो आपको ये लर्न हो जाएगा. ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आपको ये दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे? अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स को हम अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, वो सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये अट्रैक्ट किससे करेंगे? दे विल अट्रैक्ट विद अ फोर्स. वो मैं यहाँ पे इसकी आपको समझा रही हूँ. ठीक है, ये कि किस तरीके से इसकी डेरिवेशन आएगी. एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये. ठीक है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई. ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. मासेस मतलब उनका वेट. मान लेते हैं इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, तो इन दोनों का जो मास का प्रोडक्ट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा. तो प्रोडक्ट मतलब m into m. ठीक है, so they are saying that this force, I'm repeating it again, look here, it is saying that every object in the universe, it attracts every other object with a force proportional to the product of their masses. Proportional का मतलब अगर ये बढ़ेगा, this side is going to increase, then this side will also increase. This is meant by proportionality. ठीक है, so he said that this force is directly proportional to the product of their masses. और second line देखो, second is break this law into three parts. Okay, so second part is, and it is inversely proportional. Inversely ये लिखा है, it is inversely proportional to the square of distance between them. Inversely कैसे लिखते हैं हम लोग? Inversely ऐसे लिखते हैं, f लिखा, इनवर्सली यही रहेगा, लेकिन इनवर्सली में क्या होता है? ऊपर 1 और नीचे वो वैल्यू आएगी जिसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो ये इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? d का स्क्वायर. डिस्टेंस, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, जो भी डिस्टेंस उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रहेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. विच मीन्स इफ द फोर्स इंक्रीजेस, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा बेटा? ये कम हो जाएगा. ठीक है, और इस वाले ऊपर वाले केस में आप देखो, फोर्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा. इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स विल डिक्रीज. उल्टा. ठीक है, इनवर्सली का मतलब होता है ऑपोजिट एंड डायरेक्टली का मतलब होता है सेम. सो लेट्स ब्रेक दिस लॉ इनटू 3 पार्ट्स फर्स्ट. और ये सब कुछ किस में होता है? इट हैपेंस इन अ straight line. ठीक है, so the force is along the line joining the center of the two objects. Now here you can see कि इसके सेंटर कहाँ है. मैं रिपीट करूंगी, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आई विल रिपीट. दिस इज द सेंटर, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग देम, और ये फोर्स इस लाइन पे वो एक्ट करता है. ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग, ब्रेकिंग दिस लॉ इनटू 3 पार्ट्स.
फर्स्ट पार्ट सेज कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूँ। सो इट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो अट्रैक्ट किस से करेगा? एक फोर्स से करेगा। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं? एम इंटू एम, तो मैं इसको एम एम भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इंटू नहीं लिखा तो चलेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द लॉ। अब हम इसका इस लॉ को कंबाइन करेंगे और ये फोर्स कहाँ लगेगा? इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। और ये फोर्स, ये जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन पे वो फोर्स एक्ट करता है। सो नाउ थ्री पार्ट्स आई एम रिपीटिंग अगेन। दिस फर्स्ट इज दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स जो लगेगा किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? एक तो उनका मास क्या है उससे अट्रैक्ट करेगा, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस उनके बीच में है उसके, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंबाइन दिस लॉ। ये डेरिवेशन बता रही हूँ मैं अब आपको, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? फोर्स को लिखेंगे एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? एम एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? डी स्क्वायर के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एम एम अपॉन डी स्क्वायर। आई कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी तो वही हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो आई कैन राइट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मास अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना पड़ता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हटाएंगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, इसको हटाने के लिए, इसको इक्वल टू बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करना होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू पुट करने पर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा? राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पर क्या होगा? इट विल बी कैपिटल जी, ठीक है। सो प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो क्या आ गया उसकी जगह? कैपिटल जी। तो फॉर्मूला क्या बन गया अभी? द फॉर्मूला इज एफ इक्वल्स टू जी एम इंटू एम डी का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला वेयर कैपिटल जी इज व्हाट? इट इज अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ये वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। और इसको हमेशा कैपिटल जी से ही लिखते हैं। अगर आप स्मॉल जी लिखेंगे विच मीन्स इट इज रॉन्ग। सो दिस इज द डेरिवेशन और यही आपका लॉ है। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है? स्टेट एंड डिराइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ आई विल क्विकली रिपीट इट। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, इफ यू एंड मी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, वी आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली हम जो है, अगर अर्थ और मैं अर्थ अर्थ पे हम खड़े होते हैं तो अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है और हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो बोलना चाहता है। लेकिन ये जो फोर्स होगा ये किसके अकॉर्डिंग होगा? फोर्स विल बी अकॉर्डिंग टू द, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है उन दोनों का जो भी मास है, मान लीजिए इसका मास है 10 ग्राम्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 kg, इसका मास है 5 kg। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा 10 × 5 इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो अगर मैं मान लेते हैं इसको 20 कर देती हूँ, मैंने बढ़ा दिया ना, मास बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है फोर्स भी क्या हो गया? फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। But if I decrease this, let's say I make it 2. So now I have decreased the mass.
so therefore the force also decreases. So these are directly proportional to each other. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट वैल्यूज है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। नाउ इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप हम लोग जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो ऊपर से गिरते हैं तो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर लेती है, हम नीचे की तरफ गिरते हैं, लेकिन अर्थ क्यों नहीं ऊपर की तरफ आती, ऐसा क्यों हमें नहीं दिखता कि अर्थ ऊपर की तरफ आ रही है? क्योंकि आप यहाँ पर देखो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है, मास के प्रोपोर्शनल है। अर्थ का मास क्या है, मोर, तो अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया, मोर। देयरफॉर अर्थ का जो फोर्स है वो ज्यादा हुआ, हम उसकी तरफ खींचे चले गए। हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में क्या होगा, हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, हमारा वेट अर्थ के कंपैरिजन में इट इज वेरी लेस। देयरफॉर जो वेट हमने, जो मास हमने लगाया वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इट विल बी कंपैरेटिवली लेस। इसी वजह से अर्थ हमारी तरफ खिंचती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन हम अर्थ की तरफ खिंचते हुए दिखाई देते हैं। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी उनके बीच का डिस्टेंस होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वट एवर, उसका आपको स्क्वायर करना है, उसके वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और फॉर एग्जाम्पल इफ इट रिड्यूसेस, इफ फोर्स इंक्रीजेस, तो फोर्स इंक्रीज होने पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ, जितना इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा फोर्स उस पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसकी डेरिवेशन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आपको ये दो वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन है ना लॉ में, force is directly proportional to the product of masses and force is inversely proportional to the square of distance between them। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करने पे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, F F is directly proportional to m into m d का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन तो रहता नहीं है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम हटा देंगे। अगर इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। इधर वो कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। सो दिस इज सिग्निफाइड बाय कैपिटल जी। इट इज फिक्स्ड, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू फिक्स रहती है। और ये वैल्यू क्या है, आप लिख लीजिए, this value is G, capital G equals to 6.67 into 10 की पावर -11, और इसका साइन के, इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप सोचोगे इसको कैसे याद करना है, ये कैसे याद रहेगा, ये ऊपर वाली वैल्यू तो आप लर्न कर लीजिए, नीचे वाला मैं आपको बताती हूँ यूनिट कैसे याद रहेगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, do you have any doubts? Anybody who's got a doubt? Ma'am, can you repeat the thing that you had now said? Sorry, Samson, I cannot hear you. What shall I repeat? Ma'am, that you had now said. Acha, the value. You're talking about the value? Yes, ma'am. Okay, I will explain that value to you. Don't worry, वो मैं अभी मैं समझा रही हूँ। बाकी का लॉ समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay. So now I'll go to this thing. Bhumi, have you understood or have you not understood? मैम नो अंडरस्टूड का ऑल। मतलब ओके ओके ग्रेट, ठीक है। अब ये वैल्यू समझो, ये वैल्यू कैसे आएगा, ये वैल्यू तो आपको याद करना है, ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू, दिस यू हैव टू लर्न। तो ये इसके लिए कोई तरीका नहीं है कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये इसकी वैल्यू फिक्स है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये जो यूनिट्स हैं ये मैं आपको समझा सकती हूँ कि यूनिट कहाँ से आएगा और कैसे लर्न करना है। अगर बेटा आपको ये याद है, ये वाला, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इफ यू रिमेम्बर दिस, या फिर आप इसको लर्न कर लेते हैं कैसे भी, जो कि आपको हो जाना चाहिए, अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ आ गया होगा, इसी फॉर्मूले से वो वैल्यूज निकली, ठीक है। अब कैसे निकली है ये देखो, ठीक है, लुक हियर, नहीं समझ आएगा तो मैं रिपीट करूंगी, ध्यान से देखना।
न्यूटन जो होता है, न्यूटन किसकी वैल्यू होती है, किसका यूनिट होता है न्यूटन, एनीबडी? फोर्स। फोर्स का। फोर्स। तो यस, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट हो गया, फोर्स का। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ पहले। मास का यूनिट क्या होता है, मास को किसमें कैलकुलेट करते हैं? केजी। मीटर स्क्वायर। kg. मीटर मीटर। यस, केजी। तो केजी में करते हैं। यहाँ पर कितने मास है, वी हैव 2 masses, राइट? सो एंड दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, सो दैट मीन्स केजी इंटू केजी। और केजी इंटू केजी करेंगे तो क्या आंसर आएगा, केजी स्क्वायर। सही बोल रही हूँ मैं कि गलत बोल रही हूँ? एनीबडी हु वांट्स टू से दैट आई एम रॉन्ग? तो देखो, केजी स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बच्चों? मीटर मीटर। Meters. मीटर। और यहाँ पर कितना मीटर है, मीटर। स्क्वायर में है मीटर, सो विल राइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये याद रखना, इसी को हम यूज करने वाले हैं। लुक हियर, सो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम डी स्क्वायर। और यहाँ एम एम मतलब 2 डिफरेंट मासेस, जैसे अर्थ का मास और हमारा मास, अर्थ का मास या मून का मास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ जी का यूनिट निकालना है ना, तो जी को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे। जी को अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये डी स्क्वायर को आप उस तरफ लेके जाओ। अगर ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, इट विल टेल मी, Into. इनटू, इट Multiply. विल मल्टीप्लाई। सो आई विल राइट लाइक दिस। ठीक है, एफ डी स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर एफ डी स्क्वायर एफ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। सो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ। आई हैव टेकन दिस ऑन द अदर साइड, सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, एफ डी स्क्वायर। ठीक है, एफ डी स्क्वायर। नाउ जी अभी भी अकेला चाहिए, लेकिन ये तो अकेला है नहीं, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड। डिवाइड। साइड। यस, तो ये डिवाइड हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, अब ये अकेला रह गया, तो अब मैं इसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे, ये देखो, इसी वैल्यू को मैं दोबारा से लिख रही हूँ। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस अगेन ओवर हियर, इट इज एफ डी स्क्वायर एम एम इक्वल्स टू कैपिटल जी। ठीक है, जी को मैं ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज कैपिटल जी इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एफ का यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट जल्दी से बताओ। न्यूटन। N. न्यूटन। एन। Newton. यस, और डिस्टेंस का क्या था, मीटर। मीटर Kg. स्क्वायर। Meter मीटर square. मीटर। ठीक है, यस, सो मीटर स्क्वायर। और ये इसका नीचे का बताओ जल्दी से, क्या किलोग्राम लिखेंगे? स्क्वायर। केजी यस, Kilogram. केजी स्क्वायर। यस। ठीक है, हो गया। अब इसी वैल्यू, ये किसके यूनिट हो गया, जी का यूनिट हो गया। तो अब ये देखो, और ऊपर जहां मैंने इसकी वैल्यू लिखी थी वो देखो, क्या ये दोनों सेम है, आप साइड में देख पा रहे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे समझ उसका यूनिट कैसे निकलेगा। यस मैम। So Yes, ma'am. yes, so this yes, so you will learn the initial value, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और यूनिट कहाँ से आ जाएगा, यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर। कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा होता है, इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, केजी -2। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये आपके सिर्फ मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, रेसिप्रोकल कर देते तो नेगेटिव हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। सो इफ इट इज रिटन लाइक दिस और इफ इट इज रिटन लाइक दिस, देर इज नो डिफरेंस। ठीक है, इट इज द सेम। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आ गया सबको समझ में? एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस, एनीवन? You can write your name in the chat box. I am happy to repeat. I will repeat it. शुभ्रा, कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ अभी। यस मैम। हाँ, अभी कहीं नहीं जाना, रुक जाओ। So, जिसको यहाँ तक डाउट नहीं है, nobody will leave the group. You have to stay here. I am going to discuss one more point. उसके बाद में I'll tell you when to leave. ठीक है? Okay. So I think that most of you have understood this. So I'll just move on to the next topic. ठीक है? So वैल्यूज कैलकुलेट करना, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये
कहाँ कहाँ मतलब क्या वैल्यू, एक तो हमने पढ़ लिया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने समझ लिया, ये आपको लर्न करना है। सेकंड, आपने उसका डेरिवेशन समझ लिया, डेरिवेशन क्या थी, ये जो हमने वैल्यूज निकाली ये है डेरिवेशन, ठीक है, ये समझ ली। थर्ड, आपने कैपिटल जी की वैल्यू समझ ली। और फोर्थ, अब हम ये समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, वेयर इट इज अप्लाइड, इसका एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एप्लीकेशंस या फिर इम्पोर्टेंस आता है ये एग्जाम। सो एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस, इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म्स इन योर नोटबुक। तो इम्पोर्ट क्या एप्लीकेशन होगा, फर्स्ट हमने बात कहाँ से शुरू करी थी, हमने बात शुरू करी थी एक सोलर सिस्टम से, राइट। सो ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल इन द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम में अप्लाई होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया इसका बेटा, write down the application. The first application is number 1. It is, you write that this force is responsible for, it is responsible for the revolution of, responsible for revolution of sun and नहीं, revolution of planets around the sun, ठीक है, revolution of planets around the sun, ये लिखो आप, planets around the sun, this is the first point, ठीक है। तो ये फोर्स उनको अट्रैक्ट करके रखेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको अट्रैक्ट करके रखता है। सेकंड पॉइंट, सिमिलरली जो अर्थ और मून, मून भी तो घूमता है ना, इसी पॉइंट को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ, जिसने लिख लिया हो प्लीज, आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। सो द सेकंड पॉइंट इज रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हम कैसे अर्थ पे, अभी हम सबको तो हवा में उड़ना चाहिए था, लेकिन हम अर्थ पे कैसे बैठे हैं, हाउ एम आई सिटिंग ऑन द, यू नो, व्हाटएवर आई एम सिटिंग ऑन, हाउ एम आई सिटिंग हियर, हाउ आर यू By सिटिंग देयर, gravitation. यस। सो थर्ड लॉ, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, बाइंड्स अस टू द अर्थ, ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, जो आपने कभी कभी देखा होगा ना, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होते हैं सी में, वो टाइड्स भी इसी की वजह से होंगे। सो द टाइड्स, यस, द टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो होता है, ओके, दिस इज अनदर। फिफ्थ, सैटेलाइट्स कैसे मूव करती है हमारे अर्थ के आसपास, वही Ma'am, की please repeat ग्रेविटेशन। fourth. फोर्थ, Ma'am, please. इट इज, Repeat third. ओके ओके ओके, थर्ड, अच्छा थर्ड है आप कैसे अर्थ पे रहते हो। सो द थर्ड वन इज दैट दिस इज द फोर्स विच विल बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है, द फोर्थ विच बाइंड्स अस टू द अर्थ, लिख दिया, बोलो आगे। Yes, ma'am. ओके, फोर्थ, Yes, ma'am. इट कॉजेस टाइड्स, जो टाइड्स होते हैं वो भी उसकी टाइड्स होती है, वो जो लहरें उठती हैं हवा में, सॉरी रिवर में या फिर सी में, उसको हम टाइड्स बोलेंगे। तो टाइड्स भी इसकी वजह से होंगी, फ्लो ऑफ वाटर जो रिवर में होता है वो भी इसी की वजह से होता है। तो ये हो गया थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पॉइंट। सैटेलाइट्स कैसे घूमती हैं आसपास हमारे अर्थ के, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस थिंग, मिशन मंगल, एनीबडी? Ma'am, Ma'am, मैंने Ma'am, मैम मैंने भी यस, वेरी गुड। अब उसमें वो क्या करते हैं, किसी को पता है, वो कहती है कि, मैंने भी देखा है। बहुत अच्छी बात है, जिसने देखा है तो आप लोगों का, आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे होता है। वो क्या बोलती है कि व्हाट वी विल डू इट, वो पूरी का एक एग्जांपल देती है कि गैस बंद कर देंगे तो तेल गर्म रहेगा और पूरी पूरी जो है वो फिर से फूल जाएगी। सिमिलरली वो क्या समझाती है कि अगर हम उस जो वो लोग मंगलयान भेज रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि वो ऑर्बिट में रहेगा। ऑर्बिट में क्यों रहेगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, राइट। तो वो जो फ्यूल है, वो फ्यूल जगह जगह पे बोलते हैं कि यहाँ पर हम उस फ्यूल को बढ़ाएंगे, वहां पर ऑन करेंगे, तो वो छूट कर वो अगले ऑर्बिट में जाएगा, फिर छूट कर वो अगले ऑर्बिट में जाएगा। याद है किसी को ऐसा, कैसा कुछ बोलते हैं वो उस मूवी में? यस मैम। yes, ma'am.
Yes, तो वो ma'am. ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने फ्यूल के फोर्स से। तो इस वजह से वो उनका मंगल तक पहुंच पाता है, इट रीचेस द मार्स बिकॉज वो ओवरकम कर पाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट्स and the whatever we send in the space, it is only because of the gravitational force. ठीक है, next नेक्स्ट इज अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि सोलर इक्लिप्स कब होगा या लूनर इक्लिप्स कब होगा, ये सब कुछ भी आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे? यू विल प्रिडिक्ट इट बाय दिस थिंग, ग्रेविटेशनल जो लॉ होता है इसी के बेसिस पे यू कैन प्रिडिक्ट दैट दोज इक्लिप्सेस। ठीक है, ग्रहण को हम उससे कर सकते हैं, हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको कि कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। ठीक है, एंड देयर आर मेनी other applications of it. If you want, you can find out about them and we can discuss it in the class. So that will be all for today. This is all I wanted to tell you about gravitation today. So if you have any doubts, we can discuss about it. Otherwise, I will just discuss a few things once again because there is still some time left. Anybody who has not understood? Okay. All right. I hope that everybody has written their name, class and section in the chat box. लिखा है ना सबने? जिसने नहीं लिखा है, please लिखो.